Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 3 of the fourth chapter Motion in a Plane of class 11th. In this part, that is part 3, I am going to discuss the topics which are polygon law of vector addition, subtraction of vectors, and some problems based on subtraction of vectors and vector addition. First of all, polygon law of vector addition, which is the third law of vector addition, followed by triangle law and parallelogram law, which I have discussed in the previous part already. But this third rule of vector addition was not done in the last part, that is part 2. This law, that is polygon law of vector addition, सदिशों के योग का बहुभुज नियम इन हिंदी, सदिशों के योग का बहुभुज नियम. So this law of vector addition can be used to obtain the resultant vector of or addition of more than two vectors. Triangle law and parallelogram law are used for the addition of two vectors only. But with the help of polygon law of vector addition, we can add more than two vectors. Addition of any two vectors can be obtained by geometrically by using triangle law of vector addition. In a step by step, by using triangle law of vector addition, we can add all the vectors which are given to obtain the resultant vector. ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम के हेल्प से, की सहायता से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं. लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर दिए हुए हों तो हम स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे और ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप से रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मोर देन टू वेक्टर्स दिया हुआ है, दो से अधिक वेक्टर्स सदिश दिए हुए हों, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन in more than by repeating steps. Now the statement of polygon law of vector addition. The statement is, if a number of vectors can be represented magnitude and direction by different sides of a polygon taken in the same order, then the resultant or resultant vector can be represented totally in magnitude and direction by the last side or closing side of the polygon. And this statement is called polygon law of vector addition. I am repeating again. You can write down the statement of polygon law of vector addition, which is, the statement is, if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then the resultant vector, that is R vector, I have taken the resultant vector as R vector, capital R vector, is represented in magnitude and direction by the closing side, that is last side of the polygon taken in the reverse order. If a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then their resultant vector, that is R vector, capital R vector, is represented in magnitude and direction by the closing side, that is last side of the polygon taken in the reverse order. यहाँ मैंने ज्योमेट्रिकली भी रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग पॉलीगन लॉ in case of polygon law of vector addition, which is geometrical representation, that is in the geometrical representation of polygon law of vector addition.
I have taken a polygon PQSTVW, that is a hexagon. So by using a polygon like hexagon, we can add 5 vectors. Last vector of the hexagon will represent the resultant vector in the reverse order. So using polygon law, to add 5 vectors, we have to represent the given vectors, 5 vectors, by 5 sides of a hexagon, that is polygon, in the same order, that is P to Q, Q to S, S to T, T to V, V to W. Then the resultant vector, that is R vector, resultant of all the vectors, that is A vector, B vector, C vector, D vector, E vector, जो कि पॉलीगन हेक्सागन के साइड्स PQ, QS, ST, TV और VW से रिप्रेजेंट किए गए हैं. 5 vectors A vector, B vector, C vector, D vector, E vector are represented in magnitude and direction by the 5 sides PQ, QS, ST, TV, V and VW respectively. Then according to the polygon law of vector addition, the resultant vector, that is sum of all vectors, all 5 vectors, A vector plus B vector plus C vector plus D vector plus E vector, can be represented by the last side, that is closing side of the hexagon, which is a polygon, PW, in the reverse order. इसका जो डायरेक्शन होगा P से W होगा. बाकी सभी वेक्टर्स जो हैं, जो कि हेक्सागन के 5 साइड से या पॉलीगन के 5 साइड्स PQ, QS, ST, TV और VW से रिप्रेजेंट हैं, तो उन सब का ऑर्डर एक है, उन सब का डायरेक्शन सेम है. P से Q है, A वेक्टर का डायरेक्शन, Q से C है, QS साइड से रिप्रेजेंटेड है B वेक्टर, तो उसका भी डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग है, सेम ऑर्डर में है, Q to S. फिर थर्ड वेक्टर C वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन S to T है, जो कि सेम डायरेक्शन में को फॉलो कर रहा है. D वेक्टर जो फोर्थ वेक्टर, उसका डायरेक्शन T to V है. फिफ्थ वेक्टर जो है कैपिटल E वेक्टर, उसका डायरेक्शन V to W है. Then the resultant vector can be represented by in magnitude and direction by the last side, that is final side PW of the hexagon, which is a polygon. But the direction of resultant vector is opposite to those the direction of the vectors taken in the same order. और सभी जो वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है सेम ऑर्डर में है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो P to W हो जाएगा. दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ऑल 5 वेक्टर्स जिसको हमने 5 हेक्सागन के 5 साइड से रिप्रेजेंट किया है, उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. तो यूजिंग पॉलीगन लॉ इन वेक्टर एडिशन इन द गिवन पॉलीगन इन विच 5 वेक्टर्स कैन बी एडेड, लास्ट वेक्टर इज लेफ्ट. लास्ट वेक्टर को लेफ्ट कर देंगे, लास्ट साइड को लेफ्ट कर देंगे. लास्ट साइड इज लेफ्ट टू रिप्रेजेंट द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन इज लेफ्ट टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड द रिमेनिंग 5 साइड्स इन केस ऑफ ए पॉलीगन हेक्सागन आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर, which is done in this figure. Then using polygon law in this figure, in which geometrical representation of vector addition of 5 vectors, A vector, B vector, C vector, D vector and E vector is represented by the last side, closing side of the polygon. So we can apply this polygon law in the given hexagon. Using the polygon law in the given hexagon, that is hexagon is also a polygon, hexagon that is polygon, ब्रैकेट में polygon ही लिखता हूँ, PQS TVW we have पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं. PQ वेक्टर, PQ साइड से A वेक्टर रिप्रेजेंट है, तो PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर प्लस ST वेक्टर
जिससे सी वेक्टर रिप्रेजेंट है, प्लस टी वी वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर इजकल टू पी डब्ल्यू वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, दैट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो वी हैव पी क्यू वेक्टर, पी क्यू साइड से रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को, तो पी क्यू वेक्टर भी वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, पी क्यू साइड भी, क्योंकि उसका डायरेक्शन वहाँ रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और पी क्यू वेक्टर के द्वारा ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, प्लस क्यू एस वेक्टर जिससे कि बी वेक्टर रिप्रेजेंट है, प्लस एस टी वेक्टर प्लस टी वी वेक्टर प्लस वी डब्ल्यू वेक्टर इक्वल्स टू लास्ट साइड जिससे वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। बाकी सब वेक्टर का जो साइड है या बाकी सभी साइड्स का जो ऑर्डर है उसके रिवर्स ऑर्डर में ये लास्ट साइड या क्लोजिंग साइड का ऑर्डर है। ये हो गया पी डब्ल्यू वेक्टर, दैट इज पी डब्ल्यू वेक्टर इज आर वेक्टर, दैट इज, और पी क्यू वेक्टर से पी क्यू साइड से रिप्रेजेंट किए हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ए वेक्टर को, पी क्यू साइड्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि स्टेटमेंट है इसका। ए वेक्टर क्यू एस से बी वेक्टर प्लस एस टी से सी वेक्टर प्लस टी वी से डी वेक्टर और प्लस वी डब्ल्यू से ई वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, और सबका साइड जो होगा, सबका सम जो होगा, ऑल 5 वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो इसके सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लास्ट साइड से, क्लोजिंग साइड से, पी डब्ल्यू। तो पी डब्ल्यू वेक्टर से हम साइड पी डब्ल्यू से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज पी डब्ल्यू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई साइड पी डब्ल्यू वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्ट हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तो हेयर the rule polygon law is applied for the vector addition of more than 2 vectors, that is here I have taken 5 vectors. Now polygon law, this result can be proved also by using triangle law in triangle law successively in different steps, followed by in one step we can obtain PS, that is resultant of A vector and B vector. So for this we can join P and S to obtain the resultant vector. तो ये फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट पी एस से हमको ऑब्टेन करेंगे, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में अब पी से फिर हम ज्वाइन कर देंगे किसको, पी से हम ज्वाइन कर देंगे ये टी को, तो सेकेंड स्टेप में रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। और लास्ट में फिर जो है 3 स्टेप्स में करना पड़ेगा, 3 टाइम्स हमको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को सक्सेसिवली 3 स्टेप्स में फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए फिर ज्वाइन करेंगे हम पी पॉइंट पी को और वी को, वर्टेक्स पी और पॉलीगन के वर्टेक्स पी और वी को ज्वाइन करेंगे, और तब जा करके हमको पी डब्ल्यू दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर सभी वेक्टर का मिल जाएगा। और ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन से जो हम वेक्टर को ऐड किए हैं वह रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन in different steps. Now the proof of polygon law of vector addition. अब इसके लिए प्रूफ के लिए जो हमने डायग्राम स्केच किया है ज्योमेट्रिकली, जिसमें पॉलीगन लॉ को रिप्रेजेंट किया है रिजल्टेंट वेक्टर को इस पॉलीगन के लास्ट साइड से पी डब्ल्यू से रिवर्स ऑर्डर में। अब इसके लिए हम वर्टेक्स, जो पॉलीगन का वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करेंगे पी टू एस, पी टू टी एंड पी टू वी। तो ज्वाइन vertex of the polygon P2S, then P2T, and finally P2V. Now using triangle law of vector addition in first triangle PQS, using triangle law of vector addition, ट्रायंगल लॉ सक्सेसिव ऑर्डर में, सक्सेसिव स्टेप में हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ का। इन ट्रायंगल
PQS वी हैव, अब ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं PQS में। इसके लिए P से S को हम ज्वाइन किया है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होगा, दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हों सेम ऑर्डर में, तो उसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा, अब वो रिवर्स ऑर्डर में ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट हो गया रिवर्स ऑर्डर में, मतलब PQ प्लस QS इजकल टू PS, दैट इज PQ वेक्टर फर्स्ट साइड है उसका प्लस QS वेक्टर इक्वल्स टू PS वेक्टर, मतलब SP नहीं होगा, PQ प्लस QS इजकल टू SP नहीं होगा, SP होगा तो सेम ऑर्डर में हो जाएगा, तो ट्रायंगल लॉ का वायलेशन होगा, ट्रायंगल लॉ के विरुद्ध होगा वो चीज़। तो इसलिए PQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर इजकल टू PS वेक्टर, और ये हो जाएगा PQ इजकल टू A वेक्टर प्लस QS इजकल टू B वेक्टर इक्वल्स टू PS इजकल टू हो गया, PS से रिप्रेजेंट होगा दोनों का सम, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया PS, तो ये हो जाएगा इजकल टू PS वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। PS वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया इससे A प्लस B, PS वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं PS साइड को हम A वेक्टर प्लस B वेक्टर यहाँ राइट कर सकते हैं, तो A प्लस B वेक्टर इजकल टू PS वेक्टर हो गया। अब इस ट्रायंगल लॉ को दूसरे स्टेप में यूज करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल PST, नाउ अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल PST वी हैव अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ, दैट इज PS, I am going to start from PS साइड PS वेक्टर प्लस ST वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा PT वेक्टर से, PT, तो PS वेक्टर वी हैव PS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, ST साइड से वेक्टर C रिप्रेजेंट है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर और C वेक्टर का, वह रिप्रेजेंट होगा PT वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। फिर से जो है ट्रायंगल लॉ अप्लाई किए हम, PS वेक्टर प्लस ST वेक्टर, अब रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंट होगा वह PT से होगा, अब रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में, न कि TP नहीं होगा बल्कि PT होगा रिवर्स ऑर्डर में, देयरफॉर PT हो गया। और PS वेक्टर आपका आ गया था A प्लस B, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये एक साथ आ गया था, ये PS वेक्टर एक साथ था, और प्लस और PT ये ST इजकल टू C वेक्टर इक्वल्स टू PT वेक्टर। अब PT वेक्टर आ गया, इक्वेशन नंबर 2 इसको हम सपोज करते हैं, तो PT वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं PT वेक्टर, जिससे ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट है, इसको लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, A प्लस B को एक साथ भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी, इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल PTV, नाउ इन ट्रायंगल PTV यूजिंग ट्रायंगल लॉ वी हैव PTV, क्योंकि हमको PT मिल गया है, थर्ड साइड से जो रिजल्टेंट वेक्टर है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर मिल गया है, तो फिर से यूज करते हैं PTV में, PT वेक्टर प्लस TV वेक्टर इजकल टू PV वेक्टर, PT वेक्टर प्लस TV वेक्टर इजकल टू PT वेक्टर, यहाँ यूज करेंगे PT वेक्टर प्लस TV वेक्टर, मतलब ये दोनों साइड को जिससे रिप्रेजेंट है दो वेक्टर, PT से रिप्रेजेंट है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तीन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, तीन वेक्टर का A B C का रिजल्टेंट इस PT साइड से हमको ऑब्टेन हो गया है, प्राप्त हो गया है। अब हमको फाइनल रिजल्टेंट हमको ऑब्टेन करना है, तो फिर ट्रायंगल यूज किए हैं PTV, तो इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई किए, तो PT वेक्टर प्लस TV वेक्टर इक्वल टू PV वेक्टर, तो PT वेक्टर प्लस TV वेक्टर इक्वल्स टू PV वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट होगा अब VP नहीं होकर के PV होगा, फिर रिवर्स ऑर्डर में होगा, बाकी दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, उसको P से T की तरफ किए हैं रिप्रेजेंट फ्रॉम P टू T, और D वेक्टर है उसका डायरेक्शन है, D वेक्टर का डायरेक्शन, D वेक्टर को रिप्रेजेंट किए हैं साइड VT से, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं TV, PT प्लस TV, सेम ऑर्डर है दोनों का, लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा P टू V होगा, न कि V टू P, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, तो इक्वल टू PV वेक्टर। और PT का वैल्यू, PT साइड से हमको थ्री वेक्टर का सम ऑब्टेन हो गया है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और TV वेक्टर से जो है TV वेक्टर से D वेक्टर है। अब 4 वेक्टर का सम हमको
4 वेक्टर्स का सम हमको मिल गया पी वी वेक्टर से, जो कि ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल में पी टी वी का थर्ड साइड है, उससे थर्ड साइड से रिवर्स ऑर्डर में ये मिल गया, 4 वेक्टर का सम मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली अब हम लास्ट में हमको रिजल्टेंट आर ऑब्टेन करना है, तो हम फाइनल में अब फोर्थ स्टेप में पी वी डब्ल्यू, ट्रेंगल पी वी डब्ल्यू का यूज करेंगे। 3 ट्रेंगल्स का यूज कर दिए, 4th ट्रेंगल का यूज करेंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, जो कि पॉलीगॉन लॉ से हमने ऑब्टेन किया था रिजल्टेंट ऑल 5 वेक्टर का। तो 4 वेक्टर का सम तो मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से ट्रेंगल लॉ, जो कि लास्ट स्टेप होगा, अब यूज करेंगे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा और पॉलीगॉन लॉ प्रूव भी हो जाएगा मैथमेटिकली भी। तो नाउ फाइनली इन ट्रेंगल पी वी डब्ल्यू, इन ट्रेंगल पी वी डब्ल्यू अगेन यूजिंग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी हैव नाउ पी वी वेक्टर से रिप्रेजेंट क्या हो गया, पी वी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो गया हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 4 वेक्टर यूज हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इससे हमको रिप्रेजेंट हो गया है 4 वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कैपिटल डी वेक्टर। इस साइड से रिप्रेजेंट हो गया है, किससे, कौन सा साइड से, जिसको ज्वाइन किए थे ओ से, वर्टेक्स पॉलीगन का पी से भी को ज्वाइन किए थे, तो ये इस ट्रेंगल पी टी भी में ही थर्ड साइड हो गया, तो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो गया हमको 4 वेक्टर का सम, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। 4 वेक्टर का सम हमको ऑब्टेन हो गया इस साइड से, पी वी से। तो नाउ यूजिंग ट्रेंगल लॉ इन ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रेंगल पी वी डब्ल्यू, विच इज द फाइनल ट्रेंगल टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 5 वेक्टर्स ए बी सी डी एंड ई वेक्टर। तो इन पी वी डब्ल्यू वी हैव पी वी वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर से 4 वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, अब प्लस सेम ऑर्डर में, अब पी टू वी डायरेक्शन हो गया। अब सेकेंड जो वेक्टर है, ये नेक्स्ट वेक्टर है ई वेक्टर, तो उसको वी डब्ल्यू साइड से रिप्रेजेंट किए हैं, तो प्लस बी डब्ल्यू वेक्टर सेम ऑर्डर में होगा, दोनों का डायरेक्शन पी वी प्लस बी डब्ल्यू का सेम ऑर्डर में होगा, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा पी डब्ल्यू होगा, जो रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब डब्ल्यू से पी ना होकर पी से डब्ल्यू होगा, इक्वल्स टू पी डब्ल्यू वेक्टर। और पी वी वेक्टर है कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, पी वी वेक्टर है, और वी वेक्टर जो है ई वेक्टर है, कैपिटल ई वेक्टर है, और ये हो गया पी डब्ल्यू से क्या हमने रिप्रेजेंट किया है, जो कि लास्ट साइड है, क्लोजिंग साइड है पॉलीगन का, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। दैट प्रूव्स पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही हमने रिप्रेजेंट किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 5 वेक्टर का सम हमको करना था, वेक्टर सम, तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि पॉलीगन के, जो कि यहाँ हेक्सागोन है, उसके लास्ट साइड से रिप्रेजेंट हुआ रिवर्स ऑर्डर में। तो दिस प्रूव्स पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन 4 स्टेप्स। The next topic is subtraction of vectors. अभी तक हमने डिस्कस किया 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन का प्रोसेस का, मेथड्स का, 3 मेथड्स का यूज किया। ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर यूज्ड फॉर adding 2 vectors geometrically, while polygon law of vector addition is used to add more than 2 vectors geometrically. Now we have to discuss subtraction of 2 vectors. Actually, subtraction of 2 vectors is not subtraction, but it is the vector sum of one vector, say a vector, to the negative vector of another vector, that is b vector. If we have 2 vectors and we have to subtract b vector from a vector, then negative vector of b vector is taken, and if it is added to a vector, then we can get a vector minus b vector, that is the subtraction or difference of 2 vector.
तो दो वेक्टर का जो घटाव है, दो सदिश का जो घटाव है, वह घटाव नहीं है एक्चुअली, यह घटाव नहीं है, यह एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर के निगेटिव वेक्टर का सम है। जैसे कि ए वेक्टर, दो वेक्टर हमको है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, टू गिवन वेक्टर्स, और इसमें ए वेक्टर में से बी वेक्टर को हमको सबट्रैक्ट करना है, मतलब हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऑब्टेन करना है। तो हमको क्या करना होगा, करना यही होगा कि बी वेक्टर के का जो ऋण वेक्टर है, बी वेक्टर का जो ऋण सदिश है माइनस बी वेक्टर, उसको फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर में ऐड करना होगा। तो ऐसा करने से हमको दैट इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, देन वी विल ऑब्टेन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर which is the subtraction of two given vectors a vector and b vector. So if a and b vector are two given vectors, or we have to subtract b vector minus b vector from a vector, that is to get a vector minus b vector. एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, ए वेक्टर कैसे ऑब्टेन करेंगे, ए वेक्टर में हम ऐड कर देंगे बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, द रिजल्ट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक्चुअली एडिशन है ये जो है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, टू वेक्टर्स, कौन कौन सा वेक्टर हो गया, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर दैट इज माइनस बी वेक्टर, इसका सम हो गया। एक्चुअली इसका ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर का सम हो गया, तो हमको मिल जाएगा सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, a vector minus b vector, and which is the resultant vector, and we can obtain this result subtraction of two vector by using triangle law of vector addition, that is geometrically as we do in case of triangle law of vector addition. So now to demonstrate subtraction of two vectors geometrically, we can use triangle law of vector addition again. So if suppose a vector is represented by a line segment OP represents a vector, and B vector is represented by another line segment, B vector को दूसरे रेखाखंड से, रेखा से, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम सपोज करते हैं PS से दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट है B वेक्टर, कैपिटल B वेक्टर, वी कैन टेक अ स्मॉल b वेक्टर ऑल्सो। तो यहाँ दो लाइन OP लाइन सेगमेंट से, स्ट्रेट लाइन से OA वेक्टर रिप्रेजेंट है, और दूसरा रिप्रेजेंट है PS लाइन सेगमेंट से दूसरा वेक्टर B वेक्टर रिप्रेजेंट है। अब हमको करना क्या है, A वेक्टर में से B वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है। तो अगर हम O से S को ज्वाइन करते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के यूज से A वेक्टर और प्लस B वेक्टर का सम मिल जाएगा, वेक्टर सम ऑब्टेन हो जाएगा। हमें घटाना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है, तो उसके लिए बी का निगेटिव वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा इसके लाइन ऑफ एक्शन पर। PS के लॉन्ग जो है PS के लॉन्ग बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर इसको हमको ड्रॉ करना होगा। तो वी हैव टू ड्रॉ माइनस बी वेक्टर, दैट इज निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाई टेकिंग ए अनदर लाइन सेगमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द लाइन PS बाई विच बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। तो बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, PS लाइन सेगमेंट से, PS रेखा से जो दूसरा वेक्टर बी वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, इसका इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का एक अपोजिट डायरेक्शन में, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा लाइन हम सपोज करते हैं, और ये लाइन है PQ, दिस लाइन इज PQ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन PQ एंड PS आर सेम, दैट इज, और मैग्नीट्यूड जो है इंग्लिश लेटर B से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो PQ से भी B वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर रिप्रेजेंट होगा PQ से भी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो PQ विल रिप्रेजेंट certainly minus B vector, that is negative vector of B vector. Now we have to obtain A vector minus B vector, and for this we can use triangle law of vector addition. Same law, triangle law is used to obtain the difference of two vectors A vector and B vectors. Same triangle law of vector addition is used to now for the subtraction of two vectors also. So actually subtraction of two vector is not subtraction but addition of a vector to the negative vector of the another vector, that is, say if A vector and negative vector of B vector, A vector plus
minus b vector, we obtain a vector minus b vector. तो यहाँ सम है एक्चुअली, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर जो है एक्चुअली डिफरेंस नहीं है बल्कि सम ही है, एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर को ऐड करना होता है। तो यहाँ भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई करने के लिए ओ टू क्यू को हम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल लॉ यूज हो सकता है। हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगा इस ट्रायंगल का, ओ से क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने से क्या हो गया, हमको थर्ड साइड ओ क्यू हो गया। अब यहाँ ट्रायंगल लॉ और यही जो है रिजल्टेंट देगा। तो अब हम ट्रायंगल ओ पी क्यू में ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो सपोज ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट किया, अब इससे जो है रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा ए और बी वेक्टर का डिफरेंस यूजिंग ट्रायंगल लॉ, दैट इज ओ ए ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इजकल टू, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में दोनों लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं ओ पी और पी क्यू से, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट होगा फ्रॉम ओ टू क्यू, विच इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, while two vectors a vector and minus b vector are represented by two sides of the triangle OPQ in the same order. O to P है, यहाँ भी जो है माइनस बी का डायरेक्शन P to Q है, तो दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सेम डायरेक्शन में है। सेम ऑर्डर का मतलब सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ट्रायंगल लॉ से वह बाकी दो वेक्टर का जो डायरेक्शन है उससे रिवर्स होगा। तो यहाँ थर्ड साइड ओ क्यू रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर। अगर ओ से हम एस को ज्वाइन करते तो ऊपर जो है ए वेक्टर प्लस वह जो थर्ड साइड होता वह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को देता, दो वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता। लेकिन यहाँ ओ से ओ टू क्यू जो है यह रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का वेक्टर सम है, जो कि डिफरेंस के रूप में आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह जो है नीचे की ओर निगेटिव डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। ए प्लस बी, यहाँ ओ से एस को ज्वाइन करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा तो वह ओ से एस को ज्वाइन करने से मिलेगा। तो ए माइनस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो कि दो वेक्टर्स ए और बी का डिफरेंस है, वह निगेटिव डायरेक्शन में, या कहने का मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में होगा ए प्लस बी के। This represents this figure represents the geometrical representation of subtraction of two vectors. Geometrical representation of subtraction of two vectors, मतलब a माइनस बी को यहाँ दिखा रहा है सब्ट्रैक्शन, जो कि एक्चुअली एडिशन ही है। अंतर है कि ए वेक्टर में दूसरे वेक्टर का निगेटिव वेक्टर जोड़ना होगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है वह है हमको ए माइनस बी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो हम यूज करेंगे, हमने सपोज किया है ओपी लाइन सेगमेंट से, ओपी जो स्ट्रेट लाइन है उसे ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। अब पी एस से जो है दूसरा वेक्टर किया है, रिप्रेजेंट किया है बी वेक्टर। अब हमको फॉर डिफरेंस ए माइनस बी ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए हमने निगेटिव वेक्टर पी क्यू, यहाँ पी क्यू साइड से रिप्रेजेंट किया है। तो पी क्यू जो है माइनस बी वेक्टर हो गया, दैट इज निगेटिव वेक्टर हो गया बी वेक्टर का, निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, निगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। ना वो हमने ज्वाइन कर दिया ओ टू क्यू, ओ से क्यू को ज्वाइन कर दिया। नाउ ज्वाइन ओ टू क्यू, ज्वाइन करने से अब ट्रायंगल फॉर्म हो गया ओ पी क्यू। अब ट्रायंगल लॉ यूज करना है, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ही हमने यूज किया, लेकिन ऑब्टेन हो गया सब्ट्रैक्शन। तो सेम रूल जो ट्रायंगल लॉ है वही सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए भी यूज होगा, यूजिंग triangle law of vector addition, triangle law of vector addition in triangle OPQ we get OP vector plus PQ vector equals to OQ vector,
और OP रिप्रेजेंट है, OP साइड से रिप्रेजेंट किए हैं ए वेक्टर को, दैट इज ए वेक्टर, OP इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर, एंड PQ से हम रिप्रेजेंट किए हैं जो PS से रिप्रेजेंट है बी वेक्टर, उसका निगेटिव वेक्टर PQ से रिप्रेजेंट किए हैं, तो PQ इज माइनस बी वेक्टर, एंड OQ जो थर्ड साइड है उससे रिजल्टेंट हो गया दोनों का A और B का, जो कि डिफरेंस बता रहा है A माइनस बी, और ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, जो कि ट्रायंगल के थर्ड साइड से ही रिप्रेजेंटेड है ट्रायंगल लॉ का यूज कर। यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें कि सेम जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है उसके हेल्प से ही सब्ट्रैक्शन भी ऑब्टेन हुआ। नाउ सम प्रॉब्लम्स based on subtraction of vector and resultant of two vectors or more than two vectors using triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. Now problems, in which problem 1 is two vectors a vector and b vector are equal in magnitude but perpendicular to each other as shown in figure। ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है, जो फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो एज्यूमिंग ए सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट दियर फॉलोइंग कम्बिनेशंस। यहाँ भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो अभी हमने मेथड पढ़ाया थी बतलाया, तो उसी मेथड का यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन यहाँ दो वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन यहाँ ऑब्टेन करना है, लेकिन मैग्नीट्यूड में अंतर है। फर्स्ट है ऑब्टेन करना है ए वेक्टर माइनस टू वेक्टर का, सेकंड है सब्ट्रैक्शन टू ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। टू ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डबल, माने डबल लेंथ का जो भी लेंथ से जिस लाइन से रिप्रेजेंट है वेक्टर उसके डबल लेंथ का लाइन जो है मैग्नीट्यूड में लेना होगा, सपोज करना होगा। डायरेक्शन वही होगा, टू ए वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो ए वेक्टर का होगा। हमने बतलाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए रियल नंबर। तो रियल नंबर अगर पॉजिटिव है, जैसे 2 + 2 है, तो अब इस रियल नंबर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है। तो 2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, और फिर बी वेक्टर माइनस हाफ 1/2 ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। और दिखाया गया है ए वेक्टर का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, माने वर्टिकल डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो डायरेक्शन तो वही हम रखेंगे जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का है, उसी को देखते हुए सुटेबल स्केल जो होगा, अब 2a होगा ए का तो उसका डबल मैग्नीट्यूड का हो जाएगा, और ए -a/2 है तो उसका हाफ मैग्नीट्यूड का होगा। तो हम मेथड ऑफ जो ट्रायंगल लॉ जो ज्योमेट्रिकली हमने अभी जो डील किया था, डिस्कस किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली, तो उसी डायग्राम का हेल्प करके ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए उसको ज्योमेट्रिकली ये सबको रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज ए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले a-2b को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन उधर है, लेफ्ट टू राइट है। तो ए वेक्टर को डायग्राम इसका करते हैं, स्केच करते हैं डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a- ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर -2b वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर -2b वेक्टर। इसी के सामने जो है इसको नीचे में कर देता हूँ। तो ये ए वेक्टर -2 वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा किधर, लेफ्ट टू राइट, जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये वेक्टर हो गया, और दूसरा जहाँ वेक्टर स्टार्ट होगा वहीं से दूसरा वेक्टर, जो वेक्टर ए वेक्टर का जो एरो हेड है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब इसके हेड से, और उसके बाद ज्वाइन कर देंगे पहले वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से, तो वह जो है रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वेक्टर हो गया जो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर ऊपर में है, लेकिन हमको 2b वेक्टर माने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड डायरेक्शन में अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल। डायरेक्शन में जो है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा -2b वेक्टर का, तो यहाँ लेमडा जो रियल नंबर है -2 है,
तो अगर किसी रियल नंबर -2 नेगेटिव रियल नंबर से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे किसी वेक्टर को, तो हमने बतलाया था पिछले पार्ट में, तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा गिवन वेक्टर का अपोजिट होगा। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे होगा, लेकिन -2 भी है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वह बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह जो है रियल नंबर जितना मल्टीप्लाई है उसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो बी वेक्टर का डबल लेंथ का डबल मैग्नीट्यूड का -2 बी वेक्टर होगा, और डायरेक्शन -2 भी है, तो बी वेक्टर अपवर्ड है तो -2 बी वेक्टर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये डबल हो गया, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका डबल हो गया, ये डबल हो गया। चलिए, ये -2 बी वेक्टर हो गया, ये -2 बी वेक्टर हो गया, जो कि बी वेक्टर के अपोजिट है, लेकिन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो रियल नंबर है वह निगेटिव है, -2 है मल्टीप्लाई। अब ये फर्स्ट वेक्टर के एरो हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट किए -2 बी, अब इसको मिला ज्वाइन कर दें, इसको मैंने फर्स्ट वेक्टर के टेल को, ए वेक्टर के टेल को -2 वेक्टर के हेड से इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या मिला, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब ट्रायंगल लॉ का यूज कर दीजिए, तो ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे तो ए वेक्टर सेम ऑर्डर में, +2 बी वेक्टर इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर -2 बी वेक्टर। यही आपको डिमोन्स्ट्रेट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ए -2 बी वेक्टर का, ये फिगर हो गया। फर्स्ट फिगर दिया है तो फिगर 2 हम मान लेते हैं, 2a रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर -2 बी वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर -2 बी वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस सेम ऑर्डर में -2 बी वेक्टर का सेम ऑर्डर में -2 बी वेक्टर इक्वल टू थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट, तो ए वेक्टर प्लस -2 बी वेक्टर इक्वल टू दिस द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इस साइड से रिप्रेजेंटेड है। इस यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं वो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो OP प्लस ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा बाकी दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के रिवर्स हो जाएगा। O से P है ए वेक्टर का, O टू P डायरेक्शन है, P टू Q है -2 बी वेक्टर का, जो कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डबल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है बी वेक्टर का, बी वेक्टर ऊपर की ओर है अपवर्ड, ये डाउनवर्ड हो गया। और अब ए वेक्टर के हेड टेल को जो सेकेंड वेक्टर है -2 बी वेक्टर जिस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, तो उसके एरो हेड से ज्वाइन कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो OP प्लस PQ इक्वल टू OQ, दैट इज ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर -2 बी वेक्टर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट का, हमने रिप्रेजेंट कर दिया फर्स्ट को यहाँ नीचे। अब 2a - b को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2a वेक्टर -b वेक्टर को। अब 2a वेक्टर -b वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2a ए का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है, यहाँ जो हमने दुगना है डबल है, रियल नंबर जो है 2 है +2 है, तो अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, पहले भी लास्ट पार्ट में मैंने बतलाया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डबल होगा और डायरेक्शन ए वेक्टर के लॉन्ग होगा। तो 2a का सूटेबल स्केल लेकर के जो ए का लेंथ है, ए वेक्टर का जो लेंथ है जो रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में दिया गया है प्रॉब्लम में, उसका डबल ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल ले लिए हम, यहाँ डबल लेंथ का, बी का डबल लेंथ का, ये हो गया 2a वेक्टर और -b वेक्टर, बी वेक्टर प्लस है तो उतना ही मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर भी, मैंने -b वेक्टर भी बी वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन निगेटिव है, निगेटिव रियल नंबर -1 से मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा जस्ट। तो मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ये -b वेक्टर हो गया जो कि +b वेक्टर के अपोजिट है। तो अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर स्टार्ट किए थे -b वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर को टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से मिला ज्वाइन कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2a - b वेक्टर का, ये हो गया। देखिए यही रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यहाँ भी ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देंगे, 2a वेक्टर प्लस -b वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर विच रिप्रेजेंटेड बाई द थर्ड साइड बट इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब 2a वेक्टर का डायरेक्शन जो है और -b वेक्टर का डायरेक्शन वो सेम ऑर्डर में है, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं होगा बल्कि इधर से ऊपर से नीचे की ओर होगा ऑब्लिकली। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया यहाँ इक्वल टू हो गया 2a वेक्टर -b वेक्टर, ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, 2a वेक्टर -b वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
2a vector minus b vector. In last, I am going to geometrically represent b vector minus 2a vector. b vector minus 2a vector है, इसका रिप्रेजेंटेशन अब कर दें. 2a vector माइनस b vector का तो हो गया है रिप्रेजेंटेशन. ये 2a vector माइनस b vector का रिप्रेजेंटेशन ठीक उसके नीचे ही कर दिया. अब है a vector माइनस, अब रिप्रेजेंट करना है b vector माइनस हाफ a vector. b vector माइनस 1/2 a vector. तो b vector का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऊपर की ओर है, उतना ही मैग्नीट्यूड सेम. अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो b vector माइनस 2a vector को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पर b vector का डायरेक्शन अपवर्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन में वही रहेगा. ये b vector हो गया डायरेक्शन ऊपर की ओर, और a/2 माइनस a/2 पॉजिटिव, a vector प्लस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है. तो अब b/2 कैसे करेंगे हम, a/2 किधर करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट, जहाँ पर इसका हेड है वहीं से ये वेक्टर स्टार्ट होगा. तो a वेक्टर इधर है प्लस x डायरेक्शन में, तो ये उसका आधा अति का होगा, उसके हाफ हो गया. तो हाफ उसका a वेक्टर के हाफ मैग्नीट्यूड का होगा लेंथ इसका, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो ये हो गया माइनस a/2 माने माइनस 1/2 a वेक्टर माइनस a वेक्टर/2. इसके लेंथ का a वेक्टर के लेंथ का हाफ हो गया ये. अब हमको रिजल्टेंट है, तो b वेक्टर के टेल को माइनस a/2 वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर जो माइनस a/2 है उससे ज्वाइन कर देंगे. ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया. देखिए यही रिजल्टेंट हो गया. अब ट्रायंगल लॉ यूज कर लेंगे, b वेक्टर प्लस माइनस a/2 वेक्टर इक्वल टू, अब रिवर्स ऑर्डर में थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा रिजल्टेंट. तो ये हो जाएगा b वेक्टर माइनस a हाफ a वेक्टर. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ b वेक्टर माइनस हाफ वेक्टर a/2 वेक्टर 1/2 a वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ b वेक्टर माइनस 1/2 a वेक्टर. तो तीनों का हमने जो दिया था प्रॉब्लम में, तीनों वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, तीनों जो है जो प्रॉब्लम था 3 पार्ट था. a-2b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर उसको भी उसके सीधे में नीचे किया, और b माइनस a/2 वेक्टर. तो b वेक्टर का तो वही रहेगा डायरेक्शन जो है, b वेक्टर में से a/2 का माने a वेक्टर का हाफ घटाना है. तो a वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो a/2 का माइनस 1/2 a वेक्टर का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगा. अब इसमें b वेक्टर के टेल से a माइनस a/2 वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिए. तो ये जो आपका थर्ड साइड हो गया इसका ट्रायंगल का, वो यूजिंग टर्म ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर b वेक्टर प्लस माइनस a/2 वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, जो कि अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बाकी दोनों वेक्टर के. ये प्रॉब्लम हो गया. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 2, in which 3 equal forces each of value 1 Newton acts along the sides BC, CD and D of a regular hexagon A, B, C, D, E, F. Calculate the magnitude of their resultant. एक रेगुलर हेक्सागोन है, स्टार्ट होता है A, B, C, D, E, F. हेक्सागोन है तो 6 साइड होगा, और उसमें 3 साइड से B, C, C, D और D, E से 3 फोर्सेस रिप्रेजेंट हैं. 1 न्यूटन का इक्वल मैग्नीट्यूड का, 1 न्यूटन का तीनों साइड से बी सी सी डी और डी से. तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है. अब यहाँ पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज हो सकता है. अब थ्री फोर्सेस का ही रिजल्टेंट जो कि बी सी के लॉन्ग है एक्ट कर रहा है, फिर सी डी के लॉन्ग है और डी के लॉन्ग है, इसका रिजल्टेंट आपको ऑब्टेन करना है, रिजल्टेंट वेक्टर. तो क्या होगा यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ के लिए, रिजल्टेंट के लिए इसका जो बी साइड है, जो फाइनल आपका जो फोर्स काम कर रहा है डी, इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे हम. इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, इसी के लॉन्ग रिजल्टेंट होगा, जिसे रिजल्टेंट तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा. इसको ज्वाइन हमने कर दिया B2E वर्टेक्स को. तो रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंट होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा B2E, और जो फोर्सेस काम कर रहा है सब सेम ऑर्डर में है, मतलब B2C 1 न्यूटन है, C2D 1 न्यूटन है, D2E सेम डायरेक्शन है, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये R वेक्टर हो जाएगा रिजल्टेंट, जो कि तीनों फोर्सेस का जो अलॉन्ग BC है प्लस CD है प्लस D है उसका रिजल्टेंट हो जाएगा. देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ऑल 3 फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाई
3 consecutive sides of a hexagon BC, CD and D is, therefore we have, now I am going to solve it. तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा? B से रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जो रिप्रेजेंट होगा किसके द्वारा? बी के द्वारा, बी साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ये रिप्रेजेंट हो गया बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी वेक्टर, बी सी साइड से 1 न्यूटन है, फिर सी डी साइड से है, प्लस फिर जो है डी साइड से रिप्रेजेंट है थर्ड फोर्स, उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज, रिजल्टेंट फोर्स हो गया आर की जगह हम यहाँ पर एफ मान लेते हैं, फोर्स है तो एफ वेक्टर कर देते हैं, एफ वेक्टर। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर जो होगा वो रिप्रेजेंट होगा किससे? बी वेक्टर से, बी साइड से, माने ये जो बी वर्टेक्स है हेक्सागोन का और ई को ज्वाइन करने से मिलेगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। तो बी वेक्टर इजकल टू बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब BC का जो है मैग्नीट्यूड दिया है 1 न्यूटन, लेकिन BC का डायरेक्शन किधर है? BC का डायरेक्शन है एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप हो जाएगा। तो ये तो इसका डायरेक्शन जो है आई का, और मैग्नीट्यूड कितना है? 1 न्यूटन है। तो और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किए हैं एफ वेक्टर को, तो एफ वेक्टर हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स टू BC हो गया 1, और डायरेक्शन तो क्लियर है एकदम, स्ट्रेट माने प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो केवल 1 डायमेंशनल इसका केस हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग, तो उधर आई कैप हो जाएगा 1 न्यूटन आई कैप प्लस, अब सबको जोड़ते जाएंगे। अब सी डी वेक्टर का फोर्स जो है ये जो है आपका एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए कि न एक्स के लॉन्ग है ना वाई के लॉन्ग है, दोनों के बीच में कहीं है, कितने कुछ नहीं। और तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो पॉलीगन होता है ये कुल जो फोर्स होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पॉलीगन है, ये हेक्सागोन है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये एंगल हो गया ये 120 डिग्री। तो 120 डिग्री होगा, तो यहाँ देखिए यहाँ ये बाहर वाला 60 हो जाएगा, तो 120 प्लस 60 180 होगा। तो अब यहाँ 1 न्यूटन जो है फोर्स है, तो इससे हम डायरेक्शन देखेंगे भीतर, अब डायरेक्शन इसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है, तो ये जो है 60 हो जाएगा, अंदर 120 होगा, लेकिन अब एक्स प्लस एक्स एक्सिस से इसका हम इंक्लिनेशन देख रहे हैं। तो अब इसका कंपोनेंट हो जाएगा, 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक जो है एक्स कंपोनेंट हो गया इधर, एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा कितना? 1 न्यूटन है इसका भी वैल्यू है 1 न्यूटन, सी डी का 1 न्यूटन है, तो इसका हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री एक्स कंपोनेंट, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जो सी डी फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ना ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जबकि एक्स वाई प्लेन में है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। और दूसरा कंपोनेंट 1 न्यूटन का हो जाएगा इधर 1 sin 60, क्योंकि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन है सी डी का, ये 1 न्यूटन का सी डी वेक्टर का, जिससे कि पॉलीगन का साइज सी डी वेक्टर का, जिससे कि जिसके लॉन्ग फोर्स 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड का एक्ट कर रहा है, लेकिन इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 होगा, क्योंकि ये हेक्सागोन है तो कोई 2 साइड के बीच का एंगल 120 होगा, और यहाँ 60 कुल मिल करके एक लाइन, एक पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म होगा किसी पॉइंट पर, वह जो है वह कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 होगा, तो ये एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं, तो 60 होगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया 1 cos 60 आई कैप, और इसका हो गया कितना 1 sin 60 जे कैप इसका, चूँकि वाई एक्सिस से इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन हम यहाँ से देख रहे हैं, ये तो इस 2 साइड के बीच का एंगल मैंने बतलाया है। तो इसका इसको कैसे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं? सी डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, 1 न्यूटन sin 60 और sin 60 डिग्री, और जे कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग प्लस वाई एक्सिस। अब यहाँ देखा जाए तीसरा जो फोर्स है डी है, तीसरा फोर्स जो है हमारा डी है, तो डी है, तो इसका अब कंपोनेंट यहाँ जो एंगल है, यहाँ टोटल एंगल 2 साइड के बीच में 120 होगा, तो ये 60 और फिर ये भी 60 120, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब माइनस एक्स एक्सिस से इसका इंक्लिनेशन हम देखेंगे, ये जो है माइनस एक्स एक्सिस से 1 न्यूटन का माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक कंपोनेंट हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वह होगा प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग, प्लस 1 न्यूटन ये है आपका सी डी साइड, ये डी साइड से रिप्रेजेंट है 1 न्यूटन ये फोर्स है।
अब इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा वन का, एक निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाई के लॉन्ग हो जाएगा। कितना होगा 1 न्यूटन डी साइड का जो डी के लॉन्ग डी पॉलीगन के हेक्सागोन के डी साइड के लॉन्ग जो फोर्स सेट कर रहा है वह 1 न्यूटन है। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा वाई डायरेक्शन से इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन हमने निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया है और दो साइड के बीच का एंगल 120 ये 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो निगेटिव एक्सिस से इसका हमने इंक्लिनेशन लिया है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा कितना निगेटिव एक्सिस, इधर कंपोनेंट हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा 1 cos 60 और माइनस आई कैप, इधर जो यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होगा, वो कंपोनेंट होगा। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वाई के लॉन्ग जो कि 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, तो 1 और वाई एक्सिस से इंक्लिनेशन इसका नहीं है, इस वेक्टर का मैंने जो फोर्स डी का जो फोर्स एक्ट कर रहा है डी के लॉन्ग उसका वाई एक्सिस से इंक्लिनेशन नहीं है, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा 1 sin 60 डिग्री और प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होता है। तो अब हमारा कंपोनेंट मिल गया। इधर हो जाएगा निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग कितना हो जाएगा 1 cos 60 माइनस आई कैप, लिख दिया जाए। तो ये तो हो गया बी वेक्टर हो गया कितना 1 न्यूटन, तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यूनिट वेक्टर आई कैप हो गया। लेकिन सी डी जो है एक्स वाई प्लेन में है तो इसका 1 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया 1 cos 60 और यूनिट वेक्टर आई कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया वाई के लॉन्ग 1 sin 60, इधर यूनिट वेक्टर हो जाएगा कितना जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है वह पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग है, प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वाई के लॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट। और थर्ड जो वेक्टर है डी वेक्टर, अब डी जो है इस ढंग से है, ये भी एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका इंक्लिनेशन निगेटिव एक्स एक्सिस से 60 लिए हैं, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड है 1 न्यूटन cos 60 माइनस आई कैप निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो प्लस यहाँ आप नीचे लिखता हूँ प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट इसका 1 डी के लॉन्ग जो 1 न्यूटन का फोर्स है, दूसरा कंपोनेंट प्लस वाई डायरेक्शन में होगा 1 sin 60 जे कैप ऊपर की ओर, वाई एक्सिस से प्लस वाई एक्सिस से इंक्लिनेशन नहीं है 1 न्यूटन का, हमने निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया है, तो 60 होगा क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल हेक्सागोन का 120 होता है। तो इसका एक कंपोनेंट केवल और रह गया 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन 1n sin 60 डिग्री और जे कैप प्लस जे कैप। अब आप देखें यहाँ 1 आई ही है, प्लस जो है वैल्यू पुट कर दें 1 आई कैप प्लस 1 cos 60 हाफ हो जाएगा cos 60, देखिए यहाँ पर 1 cos 60 आई कैप और फिर हो गया 1 cos 60 माइनस आई कैप, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 आई कैप प्लस 1 sin 60 जे कैप प्लस फिर 1 न्यूटन, फिर वही 1 न्यूटन लिखें चाहे केवल 1, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है sin 60, तो 1 sin 60 2 हो गया, दोनों सेम टर्म 1 sin 60 जे कैप और 1 sin 60 जे कैप, तो 2 sin 60 डिग्री जे कैप, ये हो गया 1 आई कैप प्लस 2 sin 60 √3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया जे कैप, डेट इज हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। हमारा रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर है ये सब, और एफ वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स है, तीनों फोर्सेस जो दिया है 1 मैग्नीट्यूड इच, दैट इज 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। रिजल्टेंट फोर्स इतने आ गया 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, इधर लिख देता हूँ देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एफ वेक्टर का मॉड हो गया, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इजकल टू फार्मूला यूज कर दीजिए, एक्स कंपोनेंट इसका एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई स्क्वायर, एक्स एफ एक्स का मतलब है 1, एक्स कंपोनेंट है 1 फोर्स का, वाई कंपोनेंट √3 है, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, डेट इज √1 √3 स्क्वायर का मतलब 3 हो गया, तो 3 प्लस 1 डेट इज 4 √4 मीन्स √4 का स्क्वायर √2 हो गया 2 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स हो गया 2 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स इज 2 न्यूटन आंसर। तो यहाँ तीनों फोर्सेस जो कि एक हेक्सागोन के तीनों सक्सेसिव साइड्स बी सी सी डी और डी से रिप्रेजेंट हैं, पॉलीगन लॉ का यूज करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर हमने ऑब्टेन किया बी के लॉन्ग, और उसके बाद उसका मॉड ले लिया वेक्टर कंपोनेंट्स का यूज करते हुए, तो
ये आ गया, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बी से रिप्रेजेंट होगा, बी साइड से, तो बी और ई को ज्वाइन करने वाला जो साइड है उससे, और ये हो जाएगा कितना, 2 न्यूटन आंसर। Now problem number 3, which will be the last problem of this part, that is part 3. If mod of a vector plus b vector equals to mod of a vector minus b vector, find angle between a vector and b vector. दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसके सम का, उसके वेक्टर सम का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वह उनके डिफरेंस, दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मॉड के इक्वल है। तो दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल होगा कैलकुलेट करना है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज करते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब फॉर्मूला आपने रिजल्टेंट ऑब्टेन करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ से देखा था, ए प्लस बी का मॉड होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चूँकि हमको दिया है का मॉड दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मॉड के इक्वल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का, दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट वेक्टर अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा था रूट अंडर ए प्लस बी का मॉड हो जाएगा रूट अंडर, उस फॉर्मूला का यूज करता हूँ, ए मॉड ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। यही फार्मूला था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने यूज किया था, ऑब्टेन किया था कि दो वेक्टर का सम है, ए और बी का सम करना है रिजल्टेंट, और उसके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह इस फार्मूला से रिप्रेजेंट होगा रूट अंडर ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। अब RHS में चलें, दो वेक्टर का डिफरेंस का मॉड है, तो यहाँ पर भी फार्मूला वही है, केवल माइनस साइन हो जाएगा। बी वेक्टर यहाँ डिफरेंस का मॉड है, तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। फार्मूला हमने यूज कर दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट दोनों साइड स्क्वायर करने से समाप्त हो जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में रूट तो समाप्त हो गया है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर सेम टर्म है, दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल हो गया। अब LHS में एक टर्म बचा 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, RHS में माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो RHS वाला जो सेम टर्म है लेकिन नेगेटिव है, तो उसको LHS में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर 2 पॉजिटिव हो गया, तो 2 दोनों सेम टर्म है, तो 4 ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, इधर 2 मॉड ए मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा है, उधर माइनस 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा, सेम टर्म है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा प्लस 2 ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज 4, डायरेक्ट लिख दिया 4 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब इधर राइट हैंड साइड में तो कोई टर्म ही नहीं बचा, 0 हो गया, और देयरफॉर 4 तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, 4 जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, इंटीजर है, मॉड ए और मॉड भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए कि अगर मॉड ए मॉड बी 0 हो जाएगा, दोनों वेक्टर का मॉड ए वेक्टर और बी वेक्टर का, तो 0 वेक्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट 0 है सभी फैक्टर का, तो निश्चित रूप से जो टर्म 0 हो सकता है कॉस थीटा है 0, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 वैल्यू किस में होता है कॉस का 90, कॉस 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर इज 90 डिग्री, दिस इज द आंसर। और इससे ये भी साबित हुआ कि दोनों वेक्टर जो है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमने पैरेललोग्राम लॉ
ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर ए एंड बी, उसके बीच का अगर इंक्लिनेशन एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट को ऑब्टेन करने का फॉर्मूला पिछले पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था। तो उसी फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ हमने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी के साथ, इसी प्रॉब्लम के साथ ये पार्ट 3 समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।